کل قیامت کے روز ہر انسان سے 5 سوال کیا جائے گا. 5 سوال کیا جائے گا. 5. آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا, آپ کو بخشا نہیں جائے گا. 5 سوال آپ سے کیا جائے گا. ہاں, اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا, لوگوں جب کل قیامت کے روز تم سے 5 سوال کیا جائے گا, 5 سوال پوچھا جائے گا, تو ہر سوال کا جواب تم کو دینا پڑے گا. ہر سوال کا جواب تم کو دینا پڑے گا. ایک مثال دے کر جانا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے. چلیے مثال کے طور پر آپ مجھے ایک سوال کیجئے. مولانا تنویر عالم کٹیہار سے آیا نا آپ کے درمیان, بہار سے آیا نا آپ کے درمیان. چلیے آپ مجھے ایک سوال کیجئے. سوال کیا ہے؟ آپ مجھ سے سوال کیجئے. آپ کو بولا تھا جب پروگرام لیا تھا میک اچھا لگوائیے گا. یہ تو آئس کریم بیچنے والا میک کہاں سے لے کے چلے آیا. بھائی آپ کیا سمجھ رہے ہیں, جو کرنے والا وہی تو لگایا. آپ دیکھیے تو جو بول رہا تھا آپ کے سامنے, آپ مجھ سے سوال پوچھئے. کیا سوال؟ آپ کوئی سا بھی سوال مجھ سے پوچھئے. میں اگر دل کرے گا نا, میرا دل کرے گا میں آپ کو جواب دوں گا, میرا دل نہیں کرے گا میں آپ کو جواب نہیں دوں گا. ہاں, آپ مجھے فورس نہیں کر سکتے. حدیث کو سامنے پہ یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ مولوی تنویر کو فورس نہیں کر سکتے کہ مولوی تنویر آپ کو بولنا پڑے گا. میں جو پوچھوں گا آپ کو بولنا پڑے گا, میں جو کہوں گا آپ کو بولنا پڑوں گا. نہیں, میرا دل کرے گا میں بولوں گا, میرا دل نہیں کرے گا میں نہیں بولوں گا. کوئی پاور نہیں کہ آپ مجھے فورس کرے. اسی طرح اگر میں آپ سے کوئی سوال کر دوں کہ صاحب آپ بولیے اس کا جواب مجھے دیجئے, تو آپ بھی بولیں گے مولوی صاحب میرا دل کرے گا میں جواب دوں گا آپ کے سوال کا, میرا دل نہیں کرے گا میں آپ کو جواب نہیں دوں گا. آپ یہاں سے ہٹ کر, یہاں سے نکل کر, یہاں سے اٹھ کر آپ چلے جائیے گا, اور آپ جاتے جاتے یہ بھی کہیے گا کہ مولوی تنویر میں تیرا باپ کا نہیں کہتا کہ تو جو بولے گا وہی مجھے جواب دینا پڑے گا. یہ تو دنیا کا عالم ہے, یہ تو دنیا کا حال ہے. لیکن کل قیامت کے روز حدیث سنیے, میرے نبی بیان فرماتے کہ لوگوں کل قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال کیا جائے گا, اور جب تک آپ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دیتے, جب تک اللہ کی طرف سے جو 5 سوالات کیے جائیں گے جب تک اس کا جواب نہ دے دیتے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا, تم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا, تم اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کو جا نہیں سکتا. حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ہر حال میں ہم کو جواب دینا پڑے گا, ہر حال میں جواب دینا پڑے گا. اے راجگرام کے لوگوں سن لینا, 5 سوال میں سے جو پہلا سوال آپ سے کیا جائے گا, 5 سوال میں سے جو پہلا سوال آپ سے پوچھا جائے گا وہ پہلا سوال یہ ہوگا. اللہ کہے گا کہ بتاؤ میں نے تم کو 70 سال کی, 80 سال کی, 90 سال کی, 60 سال کی زندگی دے کر میں نے تم کو دنیا میں بھیجا, بتاؤ تم دنیا میں 60 سال, 80 سال, 90 سال, 100 سال, 110 سال تم دنیا میں زندہ رہے, بتاؤ تم نے اپنی پوری زندگی کو کہاں پہ ختم کیا؟ بتاؤ کہ تم نے اپنی پوری زندگی کو کہاں پہ صرف کیا؟ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا. اب بتائیے ایمانداری کے ساتھ میرے سامنے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے, بتائیے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ آپ سے پوچھے گا تو جواب دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے. کیوں نہیں دے پائیں گے؟ آپ اس لیے نہیں دے پائیں گے کیونکہ آج ہمارا اور آپ کا جو ٹائم ہے وہ کیسے برباد ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں دن میں جب تک 10-12 گانا نہ سن لے تب تک اس کا دن نہیں نکلتا ہے, رات کو سونے کے ٹائم جب تک وہ 20 گانا نہ سن لے اس کی رات نہیں نکلتی ہے. کتنے لوگ ہیں آج بے وجہ جگہوں پر بلا وجہ ضرورت کے بغیر وہ اپنے ٹائم کو پاس کرتے ہیں, ٹائم کو نکال دیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں بتائیے کہ جب کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا ساری زندگی کے بارے میں, آپ جواب دے پائیے گا؟ پائیے گا آپ جواب دے؟ نہیں پائیے گا. آپ تو سب بادام بادام گانا سننے والے لوگ ہیں, بیرون کے لوگ. یہ جو بادام بادام کا گانا سنتے کہ نہیں سنتے؟
सुनते हैं ना, ये तो बिरगुम का था, क्या नाम है उसका, नाम भी भूल गया। हमें और आपको अफसोस की जरूरत है मेरे भाई। जानते हैं एक बादाम वाले ने हमारा और आपका ईमान का जनाजा निकाल दिया। एक गणना क्या निकला, बादाम बादाम दादा कांचा बादाम आमर कचे नहीं वो भाजा बादाम शुद्ध पावे कांचा है बादाम। जब ये गाना रिलीज हुआ, एक बादाम वाले ने गाना गाया था, हमारी बेटियां कपड़ा खोल खोल कर डांस कर रही है, हमारे बूढ़े चाय की दुकान में जाकर लुंगी उठा उठा कर डांस कर रहा है। जितना कर लेना है साहब कर लो दुनिया में, लेकिन याद रखो कल कयामत के रोज इसीलिए तुमको भाजा बादाम की तरह भाजा जाएगा, भाजा बादाम की तरह तुमको भाजा जाएगा। तो गाना सुनकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, अपना साल बर्बाद करने वालों, अपना वक्त बर्बाद करने वालों, तुम तैयार रहो, कल कयामत के रोज अल्लाह की कसम तुमसे सवाल किया जाएगा, तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ तुमने अपनी सारी जिंदगी को किस चीज में गुजारा। बहुत जल्दबाजी में मैं आपके सामने आज तक नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आपके सामने मुझे रखनी है। पहला सवाल हो गया, अल्लाह के नबी फरमाते 5 सवाल किया जाएगा। 5 सवाल में पहला सवाल ये होगा कि बताओ कि तुमने अपनी सारी जिंदगी को किस जगह पर खत्म किया। दूसरा सवाल पूछा जाएगा, मेरे सामने बैठे हुए नौजवानों सुनो, दूसरा सवाल जो पूछा जाएगा वो नौजवानों के बारे में किया जाएगा। है नौजवानों, लड़कियों के पीछे घूम घूम कर अपनी जवानी को बर्बाद करने वालों, ऐ लोगों मूवी देख कर अपनी जवानी को बर्बाद करने वालों, एक मसला याद रखना, कल कयामत के दिन हर इंसान से जो 5 सवाल किया जाएगा तिरमिज़ी की सही हदीस है, उन 5 सवालों में से दूसरा सवाल ये होगा कि बताओ कि तुमने अपनी जवानी को किस चीज में खत्म किया, बताओ कि तुमने अपनी जवानी को किस चीज में सर्व किया। कितने नौजवान है ना कि लड़कियों के पीछे घूम घूम कर जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। उनसे कुछ पूछो तो बोले साहब अभी तो जवान हूँ, अभी अगर इंजॉय नहीं करूंगा तो कब इंजॉय करूंगा। हाँ साहब, जितना इंजॉय कर लेना है कर लो, कल कयामत के दिन जवानी के बारे में हर इंसान से दूसरा सवाल किया जाएगा। अच्छा, आप लोगों के इधर के जो नौजवान है ये लोग IPL देखते कि नहीं देखते? IPL आज बहुत सारे नौजवान जलसा सुनने के लिए नहीं आए। क्यों नहीं आए जानते हैं? इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको IPL देखना है। कितने नौजवान हैं IPL के चक्कर में नमाज रोजा सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, और IPL देख देख कर, क्रिकेट देख देख कर वो अपनी जवानी को बर्बाद करते जा रहे हैं। याद रखिए कल क़यामत के दिन जवानी के बारे में दूसरा सवाल किया जाएगा। कितने सवाल हुए? कितने सवाल हुए? मुझे भी तो वो माहौल चाहिए ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। 2 सवाल हुए, जवाब दीजिए मुझे। 2 सवाल हुए। पहला सवाल सारी जिंदगी के बारे में, दूसरा सवाल जवानी के बारे में, तीसरे सवाल पर जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों। हर इंसान से पूछा जाएगा, ये मत समझना कि आपको छोड़ दिया जाएगा या आपको बख्श दिया जाएगा। नहीं, कल अगर मौलवी तनवीर से ये 5 सवाल किया जाएगा तो आपसे भी 5 सवाल किया जाएगा। उनमें से तीसरा सवाल ये होगा कि बताओ तुम्हारा आलीशान बंगला था, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा था, तुम्हारे पास करोड़ों का बैंक बैलेंस था, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, करोड़ों की जायदाद थी। बताओ कि तुमने अपने बैंक बैलेंस में से, तुमने अपने पैसा में से, अपनी दौलत में से, अपनी प्रॉपर्टी में से पैसा को तुमने कहां पर खर्च किया था? इसको समझने की जरूरत है, इस चीज को भी समझने की जरूरत है। कल कयामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा कि बताओ तुमने अपना पैसा को कहां पे लुटाया था, बताओ कि तुमने अपना पैसा को कहां पे खर्च किया था। बताइए, अगर कल कयामत के रोज ये सवाल जब हमसे और आपसे पूछा जाएगा कि आप अल्लाह को जवाब दे पाइएगा कि साहब हमने इस जगह पर पैसा को खत्म किया था? कितने नौजवान है रात के 12 बजे मोबाइल में फोन आया, उधर से लड़की कहती है हेलो 500 रुपया का रिचार्ज कर दो ना, 500 रुपया का रिचार्ज आप करवा देते हैं। खबरदार हो जाइए, दुनिया में तो कोई पूछेगा नहीं ना, अल्लाह पूछेगा बता 500 कहाँ गया था तेरा?
एक एक चवन्नी का। मैंने राजग्राम में तो बीड़ी के बारे में मैंने मिसाल देके गया था। उस वक्त अल्लाह के डर के ताल्लुक से मेरा खिताब हो रहा था कि अल्लाह का डर क्या होता है। और आज जब पैसे की बात आई इस हदीस के अंदर, एक बात कहता हूँ, राजग्राम के कितने नौजवान हैं जो बीड़ी पी पी कर पैसा बर्बाद कर देते, बीड़ी पी पी कर। आप लोग बीड़ी पीते कि नहीं पीते? बीड़ी पीते हैं ना? अरे साहब डरिए मत, नहीं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि बीड़ी के बारे में नहीं बोल सकता, सब बोल सकता। अगर बीड़ी के बारे में बोल दिया तो कल आप मुझे जलसे में नहीं बुलाएंगे, मत बुलाइए। कौन बोलता है कि मुझे जलसे में बुलवाइए? नहीं, मैं तो नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं तो हक बोल कर जाऊंगा। सबके बारे में बोलो पर बीड़ी के बारे में कुछ ना बोलो। ये आपका बताया कि नहीं? अच्छा ये माइक में ठीक करोगे इसको? ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ सर ठीक है, जैसा है वैसा रहना दीजिए, उसे रहने दीजिए। तो जो मैं बोल रहा था कि बीड़ी पीकर अपना पैसा बर्बाद करते हैं, पैसा खत्म करते हैं कि नहीं करते हैं। अब बीड़ी के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते। एक जगह तो मैंने बीड़ी के बारे में ऐसे बोल दिया कि साहब क्या बीड़ी के बारे में बोलूं, तो बंगला में एक आदमी ने जवाब दिया कि मौलाना सब व्यापारे वक्तव्य राखें, बीड़ी व्यापारे वक्तव्य राखिए ना, আমাদের বিলু অনুষ্ঠিত হবে না কেন? ওইটা বুকের উপরে চলে আজান দেবে, सीने पे चढ़कर आजान के बीड़ी के बारे में बोल दूंगा। अरे मैं तेरा थोड़ी कहता, मैं तो बोलूंगा क्योंकि मैं तो इंसान से डरने वाला नहीं हूँ, मैं किसी से डरने वाला नहीं। मैं अगर डरता हूँ ना बस अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता हूँ। तो बीड़ी पीकर आए नौजवानों, अपना पैसा बर्बाद करने वालों, याद रखो कल कयामत के दिन इसके बारे में एक एक चवन्नी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। दुनिया में होता है ना, एक आदमी रास्ते के किनारे में बैठकर बीड़ी पी रहा है या सिगरेट पी रहा है या गुटखा खा रहा है। अब डॉक्टर जलालुद्दीन साहब उधर से जा रहे हैं, तो डॉक्टर जलालुद्दीन साहब ने उनसे कह दिया, ए नालायक, कान के नीचे में बजाऊंगा तेरा। अरे नालायक, तू सबके सामने में बीड़ी पीता है, बीड़ी के नाम पर पैसा को बर्बाद करता है, तबाह करता है। जवाब देता है, मौलवी साहब मेरा पैसा है, मैं अपना पैसा से खाता हूँ, आपको मिर्ची क्यों लगती है? आपका बाप का किया जाता है, दुनिया में आपके बाप का किया जाता है। पियो ना, कौन मना कर रहा है साहब? अरे पियो, दिन में एक पैकेट क्यों 14 पैकेट बीड़ी पियो, मेरा कुछ नहीं जाता, मेरा बाप का भी कुछ नहीं जाता। लेकिन इतना याद रखना, दुनिया में किसी का कुछ नहीं जाता, लेकिन आखिरत के दिन, कल कयामत के दिन, डे ऑफ जजमेंट को, बदले के दिन में आपसे सवाल किया जाएगा कि बताओ तुमने अपना पैसा को कहाँ पे खर्च किया था। फिर बताइए, क्या उस दिन अल्लाह को ये कहिएगा? दुनिया में तो कहते थे ना कि मेरा बाप का पैसा था, क्या अल्लाह से भी कहेंगे कि अल्लाह मेरा बाप का पैसा था, मैंने जहां मर्जी, मेरा जहां दिल किया मैंने खत्म किया, मेरा जहां दिल किया मैंने लुटाया। तेरा किया जाता है क्या? जवाब दे पाइएगा अल्लाह को? जवाब नहीं दे पाइएगा। आज कितने नौजवान है, नौजवानों सुनो, कितने नौजवान है, गानों की महफिलें सजाई जाती है, गानों की महफिलें सजाई जाती है, नचनिया को बुलाए जाते हैं दावत देकर, नचनिया लोग आती है, डांस करती है, नाचती है, और हमारे कितने नौजवान सामने में जाकर थू लगाकर पैसा इस तरह उड़ा देते हैं। जो डांसर होती है, जो लड़कियां डांस करने वाली होती है, मुंह में थू लगाकर पैसा को इस तरह बर्बाद कर देता है, पैसा इस तरह उड़ाता है। याद रखो कल कयामत के दिन इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा और तुमको जवाब देना पड़ेगा। और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जरा जवाब मुझे दीजिएगा। आप लोगों के बिरभूम में लोग लॉटरी काटते हैं कि नहीं काटते? लॉटरी काटते हैं? चलिए इसके बारे में भी सुनते जाइए। पैसा कहाँ बर्बाद करो, सुनो यार, शर्म आनी चाहिए ऐसे नौजवानों को, ऐसे मुसलमानों को। दिन में 300 रुपया कमाता है, सुनिए, दिन में 300 रुपया कमाता है, और 300 रुपया कमाकर जब शाम को घर आता है तो घर आते हुए क्या करता है? 200 रुपया की लॉटरी ले लेता है, 200 रुपया की लॉटरी ले लेता है, बचता है 100 रुपया। अब 100 रुपया में क्या करता है? एक पैकेट बीड़ी खरीद लेता है। अब चंद ही पैसा बच जाता है। जब घर में आता है बीवी पूछती है कि कपड़ा चाहिए, बच्चे पूछते हैं कि चप्पल चाहिए, तब वो बेगैरत बीवी को मारता है, बच्चे को मारता है, और बीवी को मारकर मर्दानगी साबित करता है और कहता है कि मेरे पास पैसा कहाँ से है, क्या पैसे की फैक्ट्री है मेरे पास कि जब जो चाहोगे तुमको मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथी, वही नालायक, वही बेगैरत जो 200 रुपया देकर हर दिन शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में जाकर वो लॉटरी काटता है। मैंने एक दिन एक नौजवान से पूछा, अच्छा बताओ कि तुम लॉटरी क्यों काटते हो? तो जवाब देता है, मौलवी साहब मुझे करोड़पति बनना है, करोड़पति। मैंने कहा अच्छा, लॉटरी काट कर कोई करोड़पति बनता है?
तो बोला हाँ साहब, लॉटरी काट कर करोड़पति बनता है। मैंने कहा वो कैसे? तो बोला कि अगर मैं लॉटरी काटूंगा, अगर मेरा नसीब अच्छा होगा, मेरी तकदीर अच्छी होगी, तो अगर मुझे पहला इनाम फर्स्ट प्राइज अगर मुझे मिलेगा तो 1 करोड़ रुपया मिलेगा। शायद 1 करोड़ मिलता है, 1 करोड़ मिलता है। सब मुंह हिला रहे हैं, सब जानते हैं, सब लॉटरी काटते हैं आपके भी मुंह में, सब मुंह हिला रहे हैं। तो 1 करोड़ मिलेगा। फिर मैंने उनसे जो जवाब दिया, आज मैं रात ग्राम के लोगों को ये पैगाम देकर जाना चाहता हूं। सुनिए, अगर आपके गांव में, आपके रिश्तेदार में, आपके दोस्त में, आपके इलाके में अगर कोई लॉटरी काटता है और ये ख्वाब देखता है कि मैं लॉटरी काटकर एक दिन अमीर बन जाऊंगा, मैं लॉटरी काटकर एक दिन करोड़पति बन जाऊंगा, तो सुनिए, मौलवी तनवीर का पैगाम ये है कि सुनो साहब, कल आप उन तक पैगाम पहुंचा दीजिएगा कि मौलाना तनवीर ने एक पैगाम देकर गया था। सुनो कि आप लॉटरी काटकर अमीर बनिएगा या नहीं, इसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता। आप करोड़पति बनिएगा या नहीं, इसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन भिखारी जरूर बनिएगा, इसकी गारंटी मैं देकर जरूर जा रहा हूँ। लॉटरी काटने वाला अमीर बनेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन वो नालायक एक दिन भिखारी जरूर बनेगा। इसलिए नौजवानों, मेरे सामने बैठे हुए गयूर मुसलमानों, अगर आपका पैसा लॉटरी पर बर्बाद होता है तो आप कल ही से लॉटरी काटना बंद कर दीजिए, वरना याद रखिए कल कयामत के दिन इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला आपसे सवाल पूछेगा और अल्लाह तबारक व तआला को आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि आप लॉटरी काटना बंद कर दें। अच्छा, और एक चीज, कितनी चीजें बताऊं, और एक चीज, अभी आईपीएल चल रहा है। आईपीएल में सट्टाबाजी, जुआ खेला जाता है। कितने नौजवान हैं जो एक ऐप से, ऐसे तो बहुत सारे ऐप्स है, उन ऐप्स में से एक ऐप से, जिस ऐप का नाम है ड्रीम 11, कितने नौजवान हैं जो ड्रीम 11 पर पैसा लगाते हैं। इसलिए ड्रीम 11 पर पैसा लगाने वालों, याद रखो कल कयामत के दिन इसके बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा, कल कयामत के दिन इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसलिए आज आपसे मेरा यह पैगाम है कि अपना पैसा को गलत जगह पर खर्च मत करो, अपना पैसा को गलत जगह पर इस्तेमाल मत करो। तो पता क्या चला, 3 चीजें पता चल गई। पहला सवाल सारी जिंदगी के बारे में किया जाएगा। नबी अकरम फरमाते हैं कि लोगों, पहला सवाल सारी जिंदगी के बारे में किया जाएगा, दूसरा सवाल जवानी के बारे में किया जाएगा, और तीसरा सवाल उनसे ही किया जाएगा कि बताओ कि तुमने अपना पैसा को, अपनी दौलत को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जायदाद को तुमने कहाँ पे खत्म किया था। और जो चौथा सवाल आपसे किया जाएगा, जो चौथा सवाल आपसे पूछा जाएगा, वो चौथा सवाल ये होगा कि ऐ लोगों बताओ कि तुम्हारे पास जो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, तुम्हारे पास जितना सारा पैसा आया था, ये पैसा कहाँ से आया था? बताओ कि तुमने हलाल तरीके से कमाया था या हराम तरीके से कमाया था। ऐ लोगों, पैसा के पीछे भागने वालों, दौलत के पीछे भागने वालों, प्रॉपर्टी के पीछे भागने वालों, जायदाद के पीछे भागने वालों, और करोड़पति होने के चक्कर में ये फर्क ना करने वालों कि तुम हलाल तरीके से माल कमा रहे हो या हराम तरीके से माल कमा रहे हो। याद रखो कल कयामत के दिन डे ऑफ जजमेंट को तुमसे सवाल किया जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ तुम्हारे पास दुनिया में जो आलीशान बंगला था, तुम्हारे पास दुनिया में जो 60 बीघा 70 बीघा की जो जमीन थी, बताओ ये आलीशान बंगला कैसे बना था? ये 70 बीघा 80 बीघा की जमीन कहाँ से तुमने हासिल किया था? पता ये चला कल कयामत के रोज 5वां सवालों में से एक सवाल तो ये पूछा जाएगा कि तुमने पैसा को कहाँ पे लुटाया, और एक सवाल ये किया जाएगा कि बताओ कि तुमने पैसा कहाँ से हासिल किया। तुम्हारे पास इतना सारा पैसा था, तुम्हारे घर में बाथरूम में टाइल्स लगे हुए थे, मार्बल लगे हुए थे, बताओ कि ये तुमने हलाल तरीके से कमाया था या हराम तरीके से कमाया था? इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। लेकिन आज जितने भी मुसलमान हैं, बताइए ईमानदारी के साथ, बुरा मत मानना, जब बात चुभती है तो खुदनी शुरू होते उठ के चले जाते, मुझे भी पता है, लेकिन जरा ईमानदारी के साथ मुझे बताइए कि आप जो आज पैसा कमा रहे हैं, जो घर बनाए, जो गाड़ी लेकर आप घूम रहे हैं, आपके
बाथरूम में भी मार्बल और टाइल्स लगे हुए, बताइए ये पैसा कहाँ से आया? हलाल तरीके से आया या हराम तरीके से आया? पैसा आया कहाँ से? दुनिया में तो आपसे कोई सवाल करने वाला नहीं ना। अगर मैं पूछूं कि पैसा कहाँ से आया, आप जवाब देंगे है बोल भी तेरा क्या जाता है, मेरा पैसा जहाँ से मर्जी वहीं से आया, मैं जैसे चाहूँ पैसा इनकम करूँ, मैं जहाँ से चाहूँ पैसा कमाऊँ, दौलत कमाऊँ, प्रॉपर्टी कमाऊँ। तू कौन होता है बोलने वाला? तू जलसा करने के लिए आया है, जलसा कर ले, यहाँ से निकल ले, तेरा मेरा क्या लेना देना? ठीक है साहब, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तो आपको पैगाम दे रहा हूँ, हदीस की बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि कल कयामत के दिन आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि तुमने पैसा कहाँ से कमाया था? हराम का कमाई खाने वालों, हराम कमाई करके, हराम बिजनेस करके, हराम तिजारत करके घर बनाने वालों, गाड़ियां खरीदने वालों, जमीनें खरीदने वालों, याद रखो कल कयामत के दिन इसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। लेकिन जानते हैं हमारे ऊपर ना कुरान और हदीस की बातें असर नहीं करती है। इसके पीछे की वजह जानते हैं? इसके पीछे की वजह यह है कि मौलाना साहब हमें पैसा चाहिए, हमें दौलत चाहिए। अब पैसा कहाँ से आए हमें ये देखना नहीं है। सही बुखारी के हदीस है, कयामत की अलामत में से एक अलामत ये है कि अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि इंसान माल के पीछे अंधा बनकर घूमेगा। सही बुखारी के हदीस है, माल के पीछे अंधा बनकर घूमेगा। माल के पीछे माल कमाने के लिए वो इतना अंधा हो जाएगा कि वो फर्क नहीं करेगा, वो तमीज नहीं करेगा कि वो हलाल तरीके से माल कमा रहा है या हराम तरीके से माल कमा रहे। आज हमारे अंदर माल की इतनी मोहब्बत पैदा हो गई कि हमें सिर्फ माल चाहिए, हमें सिर्फ दौलत चाहिए, हमें सिर्फ पैसा चाहिए। अगर जरूरत पड़ेगी तो अपना भाई का हक मारूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी अपनी बहन का हक मारूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे घर के करीब रहने वाला जो हमारा पड़ोसी है, जो गरीब है, उसका भी हक मार लूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे गांव में रहने वाले यतीम का, हमारे घर के करीब रहने वाले बेवा का हम हक मार लेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो मौलाना साहब चोरी भी करूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी डाका भी डालूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो शराब भी बेचूंगा, हराम कामों का भी बिजनेस करूंगा। लेकिन मौलाना साहब हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा के बगैर कोई दुनिया में तो दूसरी चीज है ही नहीं है। पैसा के पीछे भागने वालों, मेरी बात कड़वी है पर एक एक बात को गौर से सुनिए। कल कयामत के दिन एक एक पैसा के बारे में, एक एक चवन्नी के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरा आज का पैगाम आपके नाम, आज का पैगाम राजग्राम के लोगों के नाम ये है कि लोगों हराम तरीके से पैसा मत कमाओ, हराम तरीके से दौलत मत कमाओ, हराम तरीके से प्रॉपर्टी मत कमाओ, बल्कि बेशुमार हलाल के रास्ते हैं, हलाल तरीके से तुम पैसा कमाओ। और आगे आइए।